Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am Mrs. Sumair Kanwal, Senior Subject Specialist Biology. Welcome to online classes. Dear students, let's see the chapter number 17, Coordination and Control. Today we will discuss about hormones of gut, hormones of gonads and feedback mechanism. अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हॉर्मोन्स ऑफ गट. गट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को कहते हैं. गट प्रोड्यूसेस द टू इम्पोर्टेंट हॉर्मोन्स. फर्स्ट इज गैस्ट्रिन and second one is secretins. Let's see the hormones of gut. What is gut? Gut is called digestive tract or digestive system. In this picture showing the different organs of the digestive systems. All these are include gut. Many parts of gut functions as endocrine tissues. Gut के बहुत सारे parts जो हैं वो endocrine के functions में आ सकते हैं. The two important hormones discussed given below. First important hormone is gastrin. ये बेटा हम सबसे पहले देखेंगे कि how the gastrin is produced. Gastrin is produced by mucosa of the pyloric region of stomach. Stomach के pyloric region से gastrin जो है वो release होता है. और उसका main function क्या है? Function is stimulate the secretion of gastric juice. Gastrin जो है वो gastric juices की secretions की productions में help करता है, उसको stimulate करता है और gastric juices के अंदर HCl, pepsins वगैरह आ जाते हैं. Second function is gastrin produced under the influence of protein food in stomach after it is partially digested. Means कि स्टमक में पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो है वो पाइलोरिक रीजन को स्टिमुलेट करता है ताकि वो गैस्ट्रिन रिलीज करे. सेकेंड इंपॉर्टेंट हार्मोन इज secretin. How the secretin is produced? It is produced from the duodenum when acidic food touches its lining. डाइजेस्टेड फूड जैसे ही स्टमक से इंटेस्टाइन के अंदर एंटर होता है तो उसका सबसे पहला पार्ट ड्यूडिनम है. एसिडिक फूड जो है ड्यूडिनम की लाइनिंग को टच करता है और साथ ही स्टिमुलेशंस होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेक्रेटेंट्स. दिस मीन व्हेन द एसिडिक काइम टचेस द ड्यूडिनम हेल्प इन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ सेक्रेटेंट्स. नाउ द फंक्शंस आर affects the pancreas to produce and release pancreatic juice. Secretin stimulate the production of pancreatic juice. Means it stimulate the pancreas to produce the pancreatic juice. Second function is affects the rate of bile production in the liver. कि secretin जो है वो liver को भी stimulate करता है कि वो bile produce करे. After the production of secretin and gastrin, these hormones ट्रांसपोर्ट वाया द ब्लड. अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड टॉपिक को गोनेड्स. गोनेड्स आर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ गोनेड्स. फर्स्ट इज ओवरी एंड सेकंड इज टेस्टिस. ओवरी फीमेल गोनेड्स को कहते हैं एंड टेस्टिस मेल गोनेड को कहा जाता है. ओवरी रिलीजेस द टू इम्पोर्टेंट हार्मोन्स एस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्टेरोन्स. In other hands, testis is male gonad produced testosterone and 17 beta hydroxy testosterone. Gonads जो हैं ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं. तो इसमें हमने देखा कि ओवरी और टेस्टिस जो है हम उनको गोनेड्स कहते हैं. इट इज स्टिमुलेटेड बाय द गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स जो कि हमने प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ा. पिट्यूटरी ग्लैंड्स में हमने इनको डिटेल से पढ़ा. गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स जो हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं और इसके साथ साथ जो है गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स का कुछ अदर हार्मोन्स में इसका पार्ट है. जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा about the follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, interstitial stimulating hormone and prolactins. But today we will see the ovarian hormones. Let's start the ovarian hormones.
First important hormones in ovary is estrogens. You can see the ovary in these pictures which are showing the different stages of the follicle formations. Follicle formation में primary follicles है, secondary follicles है, mature follicles हैं और उसके अलावा releasing of eggs जो है उसको दिखाया गया है और फिर corpus luteum है। अब हम स्टार्ट करते हैं functions and production of estrogens. Releasing factor of estrogen. Follicle stimulating hormones from pituitary glands. Estrogen is secreted by ripening follicles. कि सबसे पहले तो पिट्यूटरी ग्लैंड से follicle stimulating hormones रिलीज होता है और उसके बाद जो है by the ripening of follicles estrogen प्रोड्यूस होता है। follicle stimulating hormones जो है वो स्टिमुलेट करते हैं कि estrogens प्रोड्यूस हो और जैसे जैसे follicles ripen होना शुरू हो जाते हैं तो estrogen रिलीज होता है। But in many species it is released by the interstitial cells of the ovary whose development has been initiated by follicle stimulating hormone from the pituitary. Now the functions of estrogens are: first important function is bring about the development of the secondary sexual character in the females. ये females के अंदर secondary sexual characters के development में help करता है। Secondary sexual characteristics के अंदर for example इसमें breast enlargement, breast development in females, sharp voice in females, vaginal development and presence of menstruation cycle वगैरह हैं। Next important function is cause thickening of the uterine wall at a point during the estrus. एस्ट्रोजेंस की वजह से यूट्रस की वॉल जो है वो थिक होना शुरू हो जाती है। जिस तरह से एस्ट्रस साइकिल के दौरान के एस्ट्रस साइकिल्स इज द मेन रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ अदर स्पीशीज फीमेल्स ऑफ नॉन प्राइमेट vertebrates. For example, rats, mice, horses, pigs have this form of reproductive cycle. एस्ट्रोजेंस की वजह से यूट्रस वॉल जो है वो थिक होना शुरू हो जाता है और एस्ट्रस साइकिल्स जो है अदर देन ह्यूमन बींग्स जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल को कहते हैं और जो कि नॉन प्राइमेट वर्टिब्रेट्स हैं क्योंकि ह्यूमन बींग्स और सम अदर मैमल्स जो हैं वो प्राइमेट वर्टिब्रेट्स में आते हैं। Next is menstrual cycle exert a positive feedback which result a sharp rise in luteinizing hormone output by the pituitary. कि menstruation cycle जो है वो भी एक positive feedback शो करता है कि जब pituitary gland से luteinizing hormones जो है वो produce होता है। Next important function is healing and repairing of uterine wall after menstruations. After the post menstruation cycle के बाद जो है जब यूट्रस की वॉल्स जो हैं ब्रेक हो जाती हैं ब्लड वेसल्स ब्रेक होने की वजह से ब्लड जो है वो रिलीज होता है तो उसके बाद हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है जो कि एस्ट्रोजेंस की वजह से होता है और एस्ट्रोजेंस हीलिंग और रिपेयरिंग ऑफ यूट्रस वॉल में हेल्प करता है। Next very important function is under the influence of estrogens, some of the cells of uterine wall become glandular and start secreting proteinaceous secretions which are taken up by the embryo during its early stages of development. एस्ट्रोजेंस के इफेक्ट के साथ साथ यूट्रस के कुछ वॉल जो हैं वो भी ग्लैंडुलर होना शुरू हो जाते हैं। ग्लैंड सेक्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं तो दिस मीन दीज सेल्स प्रोड्यूस द सेक्रेशंस। दीज सेक्रेशंस आर प्रोटोनिशियस सेक्रेशंस। तो एस्ट्रोजेंस के साथ साथ यूट्रस वॉल के कुछ सेल्स जो हैं वो ग्लैंडुलर हो जाते हैं और वो प्रोटोनिशियस सब्सटेंस सेक्रेट करते हैं जो कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में यूज होता है। नाउ द लास्ट फंक्शन इज abnormal secretion. In the absence of estrogens or the deficiency of the sex hormones for one reason or another leads in young of failure to mature sexually and sterility in the adult. कि अगर एस्ट्रोजेंस जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है या वो एब्सेंट हो तो फीमेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो हैं वो प्रोड्यूस नहीं होते। जैसा कि पहले भी जिक्र हो चुका है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट in female, sharp voice, vaginal development, absence of menstrual cycles वगैरह आ जाता है and sterility in adult. Sterile, female sterile, this mean not sexually adult कि ये जो females होती हैं ये generations produce नहीं कर सकती। अब ओवरियन हार्मोन में सेकंड इंपॉर्टेंट हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन रिलीजिंग फैक्टर।
produced by ruptured follicle in response of luteinizing hormone from the pituitary glands. प्रोजेस्टेरोन्स जो है ये रप्चर्ड फोलिकल से प्रोड्यूस होते हैं और जब फोलिकल्स रप्चर्स होते हैं तो प्रोजेस्टेरोन्स प्रोड्यूस होता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के एंड में जब फोलिकल रप्चर्स होते हैं तो एग रिलीज होता है, उस टाइम प्रोजेस्टेरोन्स प्रोड्यूस होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन्स जो है दोनों मिलकर विजाइना को एम्ब्रियो के लिए रेडी करते हैं। Now the major functions of progesterones. Progesterone inhibits the further follicle stimulating hormone secretions from the pituitary, thus preventing any more follicles from ripening. इसका एक मेन फंक्शन ये है कि फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो हैं उनकी सेक्रेशंस को स्टॉप करता है, इनहिबिट करता है और साथ साथ जो है फर्दर फोलिकल फॉर्मेशन जो है उसको उसके राइपनिंग से प्रिवेंट करता है ताकि फोलिकल्स ना बने, फोलिकल्स राइपन ना हो और फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो है वो प्रोड्यूस ना हो। नेक्स्ट फंक्शन इज affects the uterus causing further thickening and vascularization of its wall and other area of the female body, preparing it for maintaining the state of pregnancy. अब यहाँ पे फिर एक इम्पोर्टेंट फंक्शन आ जाता है प्रोजेस्टेरोन्स का कि जैसा कि हमने कहा कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और प्रोजेस्टेरोन्स जो हैं दोनों मिलकर विजाइना को एम्ब्रियो के लिए प्रिपेयर करते हैं, यानी प्रेपरेशन फॉर द प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे थिकनिंग एंड वास्कुलराइजेशन ऑफ इट्स वॉल कि मेंस्ट्रुएशंस के बाद दोबारा से यूट्रस की वॉल जो है वो थिक होना शुरू हो जाती है, वास्कुलराइज होना शुरू हो जाती है, यानी उसमें ब्लड वेसल्स जो हैं वो बनना शुरू होती हैं और प्रॉपर सर्कुलेशंस जो है वो ब्लड की होती है और उसके साथ साथ कि फीमेल बॉडी के अंदर वो एरियाज जो है वो प्रिपेयर होते हैं जिसमें इजीली प्रेगनेंसी जो है वो मेंटेन हो सके। नेक्स्ट पॉइंट इज inhibits ovulations. Ovulation means release of egg from follicles. और प्रोजेस्टेरोन्स का रोल क्या है? वो एग प्रोडक्शन को स्टॉप करता है। And last function is that's why it is a major constituent of birth control pill. क्योंकि प्रोजेस्टेरोन्स जो है वो ओवुलेशन जो है उसको इनहिबिट करता है, इसलिए हम इसको एज ए बर्थ कंट्रोल पिल भी कह सकते हैं। Now the male gonad testis. Testosterone, 17 beta hydroxy testosterones are the important hormones of testis. Testis consist of many coiled seminiferous tubules where the spermatozoa develop, and between the tubules, region of interstitial cells produced gonadal hormones called testosterone and 17 beta hydroxy testosterones. In this picture you can see the transverse section of testis और इस testis के अंदर बहुत सारी seminiferous tubules है और seminiferous tubules में spermatozoa जो है वो develop होते हैं और इनके दरमियान जो है वो interstitial cells होते हैं जो कि gonadal hormones produce करते हैं जिसको हम कहते हैं testosterones and 17 beta hydroxy testosterones. After the initiation of development, the sex organ in the fetus produce them and their level rises fairly consistently until puberty. जैसे ही fetus में sex organs develop होना शुरू होते हैं तो उसके साथ साथ puberty तक जो है वो testosterones और hydroxy testosterones जो है उसका level rise होना शुरू हो जाता है। After puberty, the supply of luteinizing hormone and therefore the level of testosterones remain constant. और जब fetus जो है उसमें puberty की stage आ जाती है तो उसमें luteinizing hormone और उसमें testosterones और luteinizing hormone जो है उसका level constant हो जाता है। अब हम देखते हैं functions of these hormones. In the fetus, testosterone initiates the development of the sex organs. At puberty, it brings about development of the male secondary characteristics. And third is promotes the sex drive at puberty. Fetus में जैसे ही sex organs develop होते हैं, testosterone fetus में sex organs के development को start करता है और जब puberty stage आती है तो उसमें
मेल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डिवेलप होते हैं, जैसा कि मेल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स में मेलनेस कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें दाढ़ी, मूंछें वगैरह और अदर मेल कैरेक्टर्स। और जब प्यूबर्टी की स्टेज आती है तो इसमें सेक्स ड्राइव जो है प्रमोट करने में भी टेस्टोस्टेरोन्स हेल्प करता है। द castrated male, a male with gonads excised or removed surgically। जो castrated male होता है जिसमें gonads जो हैं testis absent होते हैं, fails to develop secondary sexual characteristics। क्योंकि इसमें secondary sexual characteristics जो हैं वो develop नहीं होते। His body tends more towards the form of immature females। castrated males जो है वो immature females की तरह जो है वो behave करता है, यानी behave like the immature female like body, और इसमें मेलनेस कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। In this picture showing the benefits of the low and high testosterones। Testosterone is most important hormone in males। Men with the low testosterones have low energy level, joint pain, harder to gain muscles, low sex drive, easier to store fat, less confidence, depressed, increased rise of Alzheimer's diseases, and having the heart diseases. But as compared to the men with the high testosterones, having the high energy level, look and feel younger, more confidence, sharper memory, easier to burn fat, improved sex drive, and faster muscle gain and optimum circulations. This means this hormone is most important in men. अब हमारा लास्ट टॉपिक है फीडबैक मैकेनिज्म। आज हम फीडबैक मैकेनिज्म में देखते हैं कि व्हाट इज द फीडबैक मैकेनिज्म, और इसके एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। फीडबैक इन थायराइड ग्लैंड। Let's start the feedback mechanism in detail. What is feedback mechanism? It is a type of interaction in which a controlling mechanism is itself controlled by the product of reaction. It is controlling. एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें कंट्रोलिंग मैकेनिज्म जो है वो रिएक्शन के प्रोडक्ट जो हैं वो सेल्फ कंट्रोल करते हैं। अल्लाह ताला ने हर चीज जो है उसका ऑपोजिट बनाया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डे नाइट है, मेल फीमेल है, इसी तरीके से इन सिस्टम्स के अंदर भी अपोजिंग सिस्टम्स हैं और इनका मेन फंक्शन है टू कीप बैलेंस। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं वो एक दूसरे को खुद ही बैलेंस रखते हैं। For proper body functioning, two opposing systems are needed. Number one is accelerators and number two is inhibitors. For example, in a chemical reaction, इस केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स हैं, जब वो स्टिमुलेट होते हैं तो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। अब रिएक्शंस जो हैं इनके प्रोडक्ट फॉर्मेशंस में अगर कुछ एंजाइम्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं जो कि इस फंक्शन को एक्सीलरेट करते हैं, तो हम कहते हैं कि इफ देयर इज सम एक्सीलरेटर्स आर प्रेजेंट, दिस मीन सेम हियर सम इनहिबिटर इज आर आल्सो प्रेजेंट। अब आप इस केमिकल रिएक्शंस में देख सकते हैं कि रिएक्टेंट्स जो हैं उनसे प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है और ये इस रिएक्शन के एंड में जो प्रोडक्ट्स है वो इस रिएक्शन को सेल्फ कंट्रोल करते हैं। If one hormone in the body promotes or stimulates a reaction, another hormone would be checking the same. If there are some accelerators, then must be there inhibitors are also present. Examples of feedback mechanism in thyroid gland function is described. इस साइकिल में आप देख सकते हैं कि अगर बॉडी जो है उसमें कोल्ड एक्सपोजर हो तो ये मैसेज जो है वो हाइपोथैलेमस को ट्रांसफर होता है और हाइपोथैलेमस जो है वो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करता है, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो हैं इसको इनिशिएट करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरोट्रोफिन्स। और थायरोट्रोफिन्स जो हैं वो थायराइड ग्लैंड्स जो हैं उनको एक्टिवेट करते हैं
फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन्स। और थायरॉक्सिन्स जो है एज ए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जैसे ही टेम्परेचर जो है वो बैलेंस हो जाता है, इन हार्मोन्स को इनहिबिट करती हैं, यानी यहाँ पे सेल्फ कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है। फीडबैक इन थायराइड ग्लैंड। अब आप इस डायग्राम के अंदर डिफरेंट स्टेप्स जो हैं उनको देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है पिट्यूटरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है और थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट, कि जैसे ही बॉडी में जो है वो लो टेम्परेचर होता है, कोई भी कोल्ड या स्ट्रेस होता है, तो ये स्टिमुलेट करता है न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस को फॉर द रिलीजिंग ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो हैं वो थायराइड ग्लैंड्स जो है उसको एक्टिवेट करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरोट्रोफिन्स। और बाय द हेल्प ऑफ थायरोट्रोफिन जो है वो थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। और जैसे ही थायरॉक्सिन रिलीज होता है तो इसका नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है उसके एंडोक्राइन सेल्स जो प्रेजेंट है उनको कंट्रोल करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्दर हार्मोन। और उसके साथ साथ जो है वो बॉडी मसल्स जो हैं उनके अंदर मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, हीट और एटीपी प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो रेज होना शुरू हो जाता है और यहाँ पे सिस्टम जो है वो बैलेंस हो जाता है। लेट्स सी द रिकैप ऑफ टुडे लेक्चर। बेटा हमने सबसे पहले हार्मोन्स ऑफ गट जो था उसको डिस्कस किया। इसमें हमने देखा कि गट जो है रिलीज टू important hormones, secretins and gastrin, and we discuss their functions. नेक्स्ट हमने हार्मोन्स ऑफ गोनेड्स जो हैं उनको डिस्कस किया। इसमें हमने उसकी 2 डिफरेंट टाइप्स देखी, ओवरियन टेस्टिस, और उसके बाद फिर हमने ओवरियन हार्मोन्स और टेस्टिस हार्मोन्स जो हैं उनको डिटेल से डिस्कस किया। और हमारा लास्ट टॉपिक था फीडबैक मैकेनिज्म्स, जिसमें हमने डिस्कस किया व्हाट इज फीडबैक मैकेनिज्म्स। और उसके बाद हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक एग्जाम्पल को डिस्कस किया एज ए फीडबैक इन थायराइड ग्लैंड। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज।